Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are studying chapter number 2, Atomic Structure, and today this is our lecture number 9, which is about the application of Bohr's atomic model. We'll study energy release in an electronic transition, frequency of emitted radiations, its wave number, and Planck's quantum theory. Now, learning objectives of today's lecture are that our students should be able to derive a relationship for the energy release when an electron shifts from higher orbit to lower orbit, frequency of this radiation as well as its wave number. Students will also be able to solve the related numerical problems that they will be able to calculate the energy release in an electronic transition, frequency, and the wave number. Students will be able to describe the main points of Planck's quantum theory. They will also be able to understand the relationship between the energy and frequency, energy and the wavelength, energy and the wave number, and will also solve the related numerical problems. So, first of all, we are going to study the energy release in an electronic transition. हम इस आर्टिकल में ये स्टडी करेंगे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट में शिफ्ट करता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी कैलकुलेशन के लिए हम एक इक्वेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो ये बोर्स एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड ही आर्टिकल है। तो सपोज कीजिए कि दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन हायर ऑर्बिट which is denoted as n is equal to 2 and this atom hydrogen atom is in excited state क्योंकि नॉर्मली हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके फर्स्ट ऑर्बिट में होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर किसी हायर ऑर्बिट में मौजूद है then it will be in the excited state. Now, if this electron shift from the low energy orbit, then it will release the energy equal to the energy difference of the two orbit. अगर first orbit की energy E1 है, second orbit की energy E2 है, then energy release will be equal to delta E and will be equal to E2 minus E1. अब हम देखते हैं कि ये डेल्टा E के लिए हम रिलेशनशिप कैसे डिराइव करेंगे। हम इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन एटम के किसी भी ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो हम इस रिलेशनशिप से कैलकुलेट कर सकते हैं ई एन यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट एन इज इक्वल टू माइनस एम जेड स्क्वायर ई फोर over 8 epsilon naught square n square h square. इस रिलेशनशिप में m is the mass of electron, z is the number of proton or atomic number, e is the charge on the electron, epsilon naught is the permittivity of medium, n is the number of orbit and h is the Planck's constant. इस रिलेशनशिप को अप्लाई करते हुए अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें तो हम n की जगह n1 लिख लेंगे और अगर हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेकंड ऑर्बिट या हायर ऑर्बिट n2 में जो है वो डिस्क्राइब करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो n की जगह n2 लिख लेंगे। तो energy of electron in high energy orbit n2 will be given as E2 is equal to minus z square E4 m over 8 epsilon naught square n2 square h square यानी मैंने यहाँ पे n की जगह n2 लगा दिया है। In the same way, energy of electron in the low energy orbit n1 this will be equal to E1 equal to minus m z square E4 over 8 epsilon naught square n1 square h square। तो ये लो एनर्जी ऑर्बिट n1 के लिए ये एनर्जी की वैल्यू ये रिलेशनशिप हो गई E1, यहाँ पे मैंने n की जगह n1 लिख दिया है। Now energy release delta E is equal to E2 minus E1। आप यहाँ पे E1 और E2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए
तो E2 इज इक्वल टू माइनस एम जेड स्केयर E4 ओवर 8 इप्सिलॉन नॉट स्केयर एन स्केयर एच स्केयर माइनस ये माइनस E1 का साइन एम जेड स्केयर E4 ओवर 8 इप्सिलॉन नॉट स्केयर एन 1 स्केयर एच स्केयर। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, डेल्टा ई विल बी इक्वल टू माइनस एम जेड स्केयर E4 ओवर 8 इप्सिलॉन नॉट स्केयर एन 2 स्केयर एच स्केयर प्लस एम जेड स्केयर E4 ओवर 8 इप्सिलॉन नॉट स्केयर एन 1 स्केयर एच स्केयर। अब आप यूं कीजिए कि प्लस वाली टर्म पहले ले आए, माइनस वाली टर्म बाद में ले आए, सो डेल्टा ई विल बी इक्वल टू एम जेड स्केयर E4 ओवर 8 इप्सिलॉन नॉट स्केयर एच स्केयर, ये कॉमन आ गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर एन 1 स्केयर माइनस 1 ओवर एन 2 स्केयर। ये हम जो है माइनस वाली टर्म जो है वो बाद में ले गए, प्लस वाली टर्म पहले ले आएंगे, तो इसलिए 1 ओवर एन 1 स्केयर माइनस 1 ओवर एन 2 स्केयर। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब इस रिलेशनशिप में एम E4 ओवर 8 इप्सिलॉन नॉट स्केयर एच स्केयर, ये तमाम कांस्टेंट्स हैं। इन तमाम कांस्टेंट को एक सिंगल कांस्टेंट के इक्वल किया गया है विच इज इक्वल टू के। और अगर हम इन तमाम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाती है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम। तो इस इक्वेशन 1 में अब एम E4 ओवर 8 इप्सिलॉन नॉट स्केयर एच स्केयर की जगह हम यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे के, और ये आपके पास रिलेशनशिप आ गई डेल्टा E इज इक्वल टू जेड स्केयर के इंटू 1 ओवर एन 1 स्केयर माइनस 1 ओवर एन 2 स्केयर जूल पर एटम। और अगर अब आप के की वैल्यू लगा दें, डेल्टा ई विल बी इक्वल टू जेड स्केयर इंटू 2.178 इंटू 10⁻18 इंटू 1 ओवर एन 1 स्केयर माइनस 1 ओवर एन 2 स्केयर जूल पर एटम। अब हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 है, तो अगर आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है हाइड्रोजन के लिए तो z की वैल्यू को 1 कर दें, तो ये हमारे पास रिलेशनशिप जो ये इक्वेशन 2 यूं हो जाएगी, डेल्टा ई इज इक्वल टू के इंटू 1 ओवर एन 1 स्केयर माइनस 1 ओवर एन 2 स्केयर, और डेल्टा ई विल बी इक्वल टू के की वैल्यू पुट कर दें 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 1 ओवर एन 2 स्केयर माइनस 1 ओवर एन 2 सॉरी 1 ओवर एन 1 स्केयर माइनस 1 ओवर एन 2 स्केयर जूल पर एटम। तो अगर हमें जो है वो हाइड्रोजन एटम के में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के नतीजे में अमिट या एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, तो हम जो है वो इक्वेशन 2a या फिर ये 2b जो है वो पुट कर सकते हैं। 2a अगर पुट करेंगे अप्लाई करेंगे तो z की वैल्यू 1 लिखेंगे, और हम n1 जस्ट हम लिख लेंगे n1 इज फॉर द लो एनर्जी ऑर्बिट, n2 इज फॉर द हाई एनर्जी ऑर्बिट, या आप ये डायरेक्टली यही रिलेशनशिप पुट कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि चाहे इलेक्ट्रॉन एक हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट में ड्रॉप करता है या लो एनर्जी ऑर्बिट से हाई एनर्जी ड्रॉप में जो है वो शिफ्ट करता है, तो आपने n1 की वैल्यू हमेशा लो एनर्जी ऑर्बिट की लिखनी है और n2 की वैल्यू हमेशा आपने हाई एनर्जी ऑर्बिट की लिखनी होगी। Now the frequency of emitted radiation. Now energy delta E is associated with the photon in the form of the radiation. जो energy ये emit होगी ये radiation की form में है, and the frequency of this radiation can be determined by applying the Planck's equation delta E is equal to h nu। तो अब हमने अभी जो रिलेशनशिप ड्राइव की है वहां पे अब हम डेल्टा ई की जगह एच न्यू सब्स्टिट्यूट अगर कर दें तो ये आपके पास रिलेशनशिप आ जाएगी एच न्यू इज इक्वल टू एम जेड स्केयर E4 ओवर 8 इप्सिलॉन नॉट स्केयर एच स्केयर into 1 over n1 square minus 1 over n2 square, call it equation number 3। तो अब आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए h को राइट साइड पे ले जाएं, तो ये फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल हो गई एम जेड स्केयर E4 ओवर 8 इप्सिलॉन नॉट स्केयर एच स्केयर इंटू 1 ओवर n1 स्केयर माइनस 1 ओवर n2 स्केयर हर्ट्ज और साइकिल पर सेकेंड।
डियर स्टूडेंट, लेकिन अगर हमें एक न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो ये जो है ये रिलेशनशिप इक्वेशन 4 हम अप्लाई नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जो है वो डेल्टा ई कैलकुलेट करेंगे बाय अप्लाइंग द रिलेशनशिप डेल्टा ई इज इक्वल टू 2.178 into 10 to the power minus 18 into 1 over n1 square minus 1 ओवर n2 स्केयर। हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एटम के लिए हम यहाँ पे z स्केयर से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो इस रिलेशनशिप को अप्लाई करने के लिए पहले आप डेल्टा ई कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद प्लैंक्स इक्वेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू और न्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा ई जो अभी आपने इस प्लैंक्स इस इक्वेशन से कैलकुलेट किया है उसको h की वैल्यू से यानी प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे। ये क्या होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप ये मेथड अप्लाई करेंगे। नाउ द वेव नंबर ऑफ द emitted रेडिएशन। वेव नंबर किसे कहते हैं? वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस और ये न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ लैम्डा। तो अब हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट में शिफ्ट करता है तो जो रेडिएशन अमिट होगी उसकी वेव नंबर कितनी होगी? तो वेव नंबर फाइंड करने के लिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक रिलेशनशिप है कि c यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी न्यू विल बी इक्वल टू c इंटू 1 ओवर लैम्डा। और मैंने अभी आपको बताया कि 1 ओवर लैम्डा किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू वेव नंबर यानी न्यू बार के बराबर। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने फ्रीक्वेंसी की रिलेशनशिप जो है वो डिराइव की है। हम उस रिलेशनशिप में फ्रीक्वेंसी की जगह सी न्यू बार सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इस इक्वेशन में यहाँ पे पहले इक्वेशन जो हमने डिराइव की इक्वेशन 4 वो क्या थी? फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू एम जेड स्केयर ई 4 over 8 epsilon naught square h cube into 1 over n1 square minus 1 over n2 square। तो आपने यहाँ पे अब क्या करना है? फ्रीक्वेंसी की जगह c न्यू बार सब्स्टिट्यूट कर देना है। कॉल इट इक्वेशन नंबर 5। अब आप c को राइट साइड पे कर लीजिए क्योंकि आपने न्यू बार यानी ये वेव नंबर फाइंड करना है। सो न्यू बार विल बी इक्वल टू m z square e4 over 8 epsilon naught square h cube c into 1 over n1 square minus 1 over n2 square। कॉल इट इक्वेशन 5a। इस इक्वेशन में me4 over 8 epsilon naught square c h cube ये एक कांस्टेंट के इक्वल है जिसे हम रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। और इस रेडबर्ग कांस्टेंट में इन तमाम कांस्टेंट की वैल्यूज अगर पुट कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.09678 into 10 to the power 7 मीटर बार 1। तो आप इन तमाम कांस्टेंट की जगह अब यहाँ पे r जो है वो पुट कर दीजिए, r से इसको रिप्रेजेंट कीजिए। तो न्यू बार विल बी इक्वल टू जेड स्केयर r इंटू 1 ओवर n1 स्केयर माइनस 1 ओवर n2 स्केयर मीटर बार 1। तो ये r की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं न्यू बार विल बी इक्वल टू z स्केयर इंटू 1.09678 इंटू 10 to the power 7 इंटू 1 ओवर n1 स्केयर माइनस 1 ओवर n2 स्केयर मीटर बार 1। तो हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 है तो आपके पास रिलेशनशिप क्या आ जाएगी? न्यू बार इज इक्वल टू r इंटू 1 ओवर n1 स्केयर माइनस 1 ओवर n2 स्केयर मीटर बार 1। r की वैल्यू पुट करते हैं तो न्यू बार विल बी इक्वल टू 1.09678 इंटू 10 to the power 7 इंटू 1 ओवर n1 स्केयर माइनस 1 ओवर n2 स्केयर। इसकी यूनिट मीटर बार 1 हो जाएगी। तो अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो आपने क्या करना है? आपने ये रिलेशनशिप ये पुट करनी है। पहले ये लिखेंगे, उसके बाद ये इक्वेशन 7 और फिर इसमें z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 पुट कर लीजिएगा। n1 इज फॉर लो एनर्जी ऑर्बिट एंड n2 इज फॉर द हाई एनर्जी ऑर्बिट। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास ये मैथमेटिकल डेरिवेशन कंप्लीट हुई। तो हमने सबसे पहले डेरिवेशन की थी फॉर द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, उसके बाद टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और आज हमने
डेरिवेशन जो है वो की है फॉर द एनर्जी रिलीज इन एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन और आखिर में ये वेव नंबर ऑफ एमिटेड रेडिएशन। तो अब हम देखते हैं कि आज के जो लेक्चर से रिलेटेड जो है वो डिफरेंट कुछ सैंपल न्यूमेरिकल जो है वो क्या है। ये आप पहला न्यूमेरिकल जरा देखिएगा। Calculate the energy release when an electron shift from the fourth to second orbit in the hydrogen atom. तो N1 low energy orbit, N1 is equal to 2, N2 is equal to 4। इलेक्ट्रॉन फोर्थ से सेकंड ऑर्बिट में शिफ्ट हुआ है। हमने मालूम करना है कि इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो डेल्टा ई हमने मालूम करना है। रिलेशनशिप इज डेल्टा ई इज इक्वल टू जेड स्केयर के इंटू 1/n1 स्केयर माइनस 1/n2 स्केयर। यहाँ पे z की वैल्यू 1 आ गई, k की वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻18। यहाँ पे n1 और n2 के साथ स्केयर आप लगा लीजिएगा। तो 1/2 स्केयर माइनस 1/4 स्केयर वैल्यूज पुट करके सॉल्व कीजिएगा। इट इज इक्वल टू 4.073 into 10 raised power minus 19 joule per atom. Now another numerical. Calculate the amount of energy required to remove electron from the hydrogen atom. तो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, तो उसको रिमूव करना चाहते हैं हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सेकंड ऑर्बिट जो है वो इंफिनिटी होगा, यानी हमने इसको एटम से बाहर निकालना है। तो डेल्टा ई हमने इसी रिलेशनशिप से कैलकुलेट करना है। डेल्टा ई इज इक्वल टू जेड स्केयर के इंटू 1/n1 स्केयर माइनस 1/n2 स्केयर। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, 1/n1 स्केयर माइनस 1/n2 स्केयर। तो अब आप वैल्यूज पुट कीजिएगा, यहाँ पे करेक्शन करना ना भूलिएगा। 1 स्केयर इंटू 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 1/1 स्केयर माइनस 1/इंफिनिटी। तो 2.18 इंटू 10⁻18, 1 माइनस ये 1/इंफिनिटी 0 आ गया। सो 2.18 या 2.178 इंटू 10⁻18 जूल, ये क्या आ जाएगी? ये एनर्जी होगी जो कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए। इसे हम क्या कहेंगे? दिस विल बी नोन एज द आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। नाउ another numerical. Calculate the frequency and the wavelength of the radiation emitted when an electron shift from third to first orbit in the hydrogen atom. तो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से शिफ्ट कर रहा है, तो n2 इज इक्वल टू 3। फर्स्ट ऑर्बिट में शिफ्ट कर रहा है, n1 इज इक्वल टू 1। आपने एनर्जी जो रिलीज हो रही है ये मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और वेवलेंथ मालूम करनी है। अब देखें कि न्यूमेरिकल में डेल्टा ई फाइंड करने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी सिर्फ उसी सूरत में कैलकुलेट हो सकेगी अगर पहले हम डेल्टा ई कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा ई के लिए रिलेशनशिप डेल्टा ई इज इक्वल टू जेड स्केयर के इंटू 1/n1 स्केयर, यहां भी स्केयर लगा लीजिएगा, माइनस 1/n2 स्केयर। अब वैल्यूज पुट करें, ये z की वैल्यू 1 हो गई इंटू 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 1/n1 स्केयर माइनस 1/n3 स्केयर। इसको सॉल्व कीजिए, इट विल बी इक्वल टू 1.94 इंटू 10⁻18 जूल। दिस इज डेल्टा ई। अब डेल्टा ई फाइंड करने के बाद हम प्लैंक्स इक्वेशन अप्लाई करके फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, सो न्यू विल बी डेल्टा ई ओवर एच। इस डेल्टा ई की वैल्यू को प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं। फ्रीक्वेंसी विल बी 2.93 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज और सेकंड बार 1। अब आपने फाइंड करनी है वेवलेंथ। नो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, हमारे पास न्यू मौजूद है। c वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, सो लैम्डा विल बी इक्वल टू c ओवर न्यू। c इसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी अभी हमने कैलकुलेट की है 2.93 इंटू 10⁻15 सेकेंड बार 1। सॉल्व कीजिएगा, 1.024 इंटू 10⁻7 मीटर। One more numerical. Calculate the wave number of radiation emitted
when an electron shift from the fourth orbit to the first orbit in the hydrogen atom. तो n1 1 n2 is equal to 4. आपने फ्रीक्वेंसी वेव नंबर कैलकुलेट करना है। तो वेव नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे वेव नंबर न्यू बार यहाँ पे पुट कर लीजिएगा, इस न्यू के ऊपर बार, न्यू बार इज इक्वल टू जेड स्केयर आर इंटू 1 ओवर एन वन स्केयर माइनस 1 ओवर एन टू स्केयर। इसमें r की वैल्यू पुट कीजिए 1.09678 इंटू 10⁻7 इंटू 1 ओवर 1 स्केयर माइनस 1 ओवर 4 स्केयर। सॉल्व कीजिएगा, वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.028 इंटू 10⁻7 मीटर पर वन। Now we have to cover another article, which is the Planck's quantum theory. In 1900, Max Planck studied the spectral line obtained from the analysis of radiation emitted by the black bodies, hot black bodies at different temperature, and put forward a theory known as the Planck's quantum theory. यहाँ पे एक बात आ रही है, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं? ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो तमाम वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है और तमाम वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट भी कर सकता है। एमिटेड रेडिएशन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो मैक्स प्लैंक ने, आप इसकी एक एग्जांपल जरा देख लीजिएगा। सपोज एक प्लाटिनम की कैविटी है, उसके अंदर अगर हम जो है वो चारकोल की कोटिंग करते तो वो एक ब्लैक बॉडी की एग्जांपल हो जाएगी। मैक्स प्लैंक ने ऑब्जर्व किया कि अगर एक हार्ड ब्लैक बॉडी को डिफरेंट टेम्परेचर पर हीट किया जाए तो वो रेडिएशन एमिट होती है, लेकिन उन रेडिएशन को जब उसने एनालाइज किया तो देखा कि वो तमाम वेवलेंथ की नहीं है, वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की है। इन ऑब्जर्वेशन की बेस पर उसने एक थ्योरी प्रेजेंट की जिसे हम कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को ब्रीफली हमारी इस बुक में डिस्कस किया गया है, तो उसमें मैंने थोड़ी बहुत डिटेल भी शामिल की है। तो इसके कुछ मेन पॉइंट यूं हैं कि ब्लैक बॉडी एमिट्स आर एब्जॉर्ब द रेडिएशन नॉट कंटिन्यूअसली बट इन डिसकंटिन्यूअस मैनर। ये कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस एमिशन या एब्जॉर्प्शन, इसको मैं आपको जरा थोड़ा डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन आप पहले जरा ये देख लीजिए कि ब्लैक बॉडी जो है वो रेडिएशन जो है वो कैसे एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद उसको एमिट कैसे करती है। When a black body is heated, what happens? The solid particles जो कि वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है एंड दे आर सेड टू बी इन द एक्साइटेड स्टेट। जब वो डी एक्साइट होंगे, यानी ऑन डी एक्साइटेशन, व्हाट विल हैपन? द ब्लैक बॉडी विल नॉट एमिट द रेडिएशन ऑफ ऑल द वेवलेंथ। वो ब्लैक बॉडी तमाम वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट नहीं करेगी। It will emit the radiation of discrete or particular wavelength, और इस रेडिएशन को हम कहते हैं कि ये रेडिएशन कंटिन्यूसली नहीं बल्कि डिसकंटिन्यूअस मैनर में एमिट हो रही है। इसको आप जरा मुख्तलिफ अब एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो डिस्प्ले है ये कंटिन्यूअस एमिशन ऑफ रेडिएशन को जाहिर कर रहा है, जिसको हमने एनालाइज किया है इन द फॉर्म ऑफ द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। यानी ये इस वायलेट कलर यानी जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है, यहाँ से लेके 750 नैनोमीटर यानी रेड एंड तक तमाम वेवलेंथ की रेडिएशन ये एमिट कर रहा है। लेकिन उसके कंपैरिजन में ये सेकंड आप डिस्प्ले देखिएगा, ये जो डिस्प्ले ये शो कर रहा है कि सम object is emitting the radiation of only the particular wavelength, radiations of red color, blue color, violet and pink color etc. तो हम ये कहेंगे कि this radiation is being emitted in the discontinuous manner। इसको मजीद कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको वाजे करने की कोशिश करता हूँ। ये दो पिक्चर आपके सामने है, यहाँ पे एक ट्यूबवेल से कंटिन्यूसली वाटर फ्लो कर रहा है।
तमाम अमाउंट्स में। लेकिन ये एक ओल्ड वेल, बड़ा ब्यूटीफुल वेल होता था विलेजेस में। यहाँ पे ये बकेट्स जो है ये वेल में से, कुएं में से पानी लेके निकालते हैं। सपोज एक बकेट अगर जो है वो 5 लीटर वाटर लेके आ रहा है, तो ये जो यहाँ पे वाटर जो है वो फ्लो आउट कर रहा है, वो कंटिन्यूसली नहीं कर रहा। दिस इज इन द मल्टीपल ऑफ द 5 लीटर्स। दिस इज द discontinuous of flow of water from the well। एक और एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पे एक स्पेशल पर्सन एक रैंप पर जो है वो जो है मूव कर रहा है। तो ये किसी भी जो है वो स्पीड से ऊपर जा रहा है, किसी भी यानी ये जो हाइट पे जो है वो जा सकता है। तो स्लोली भी मूव कर सकता है, जो है वो तेजी से भी मूव कर सकता है अगर उसकी मैकेनाइज्ड चेयर है। तो इसको हम ये कहेंगे कि ये कंटिन्यूसली जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है इस रैंप पे। लेकिन जो है वो सपोज कीजिए कि एक और पर्सन जो है वो इन स्टेज के जरिए जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सपोज अगर एक स्टेयर की हाइट जो है वो 1 फुट है, तो इसकी कवरेज जो है वो 1 फुट ही होगी, यानी इन द मल्टीपल ऑफ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये 1.2 फुट या ये 1.5 फीट की हाइट जो है वो कवर नहीं कर सकता। ये सिर्फ 1 फुट के मल्टीपल डिस्टेंस को कवर करेगा। तो ये इसको मैं कहूंगा कि दिस इज द discontinuous coverage of the distance by stairs। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिएगा कि हमारी इस वक्त करेंसी स्मॉलेस्ट अमाउंट जो है वो 1 रुपी है। कि सपोज कीजिए कि अगर आप 1 रुपी की फॉर्म में करेंसी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो मैं इसको कहूंगा कि इट इज कंटिन्यूस, यानी किसी भी अमाउंट में आप करेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप करेंसी जो है वो 50 रुपीज की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं या 10 रुपीज की, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप करेंसी एक बंडल की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इट विल बी इन द डिसकंटिन्यूस मैनर। क्योंकि अगर आपके पास देखिए, अगर आपके पास 1 रुपी की करेंसी है, तो आप किसी शख्स को जो है वो 51 रुपीज भी दे सकते हैं, 52 रुपीज भी दे सकते हैं, आप इसको जो है वो 65 रुपीज भी दे सकते हैं, एटसेट्रा। लेकिन अगर आपके पास जो है वो 50 रुपीज की करेंसी है, तो आप किसी को भी जो है वो 51 रुपीज या 65 रुपीज नहीं दे सकते। आप जो है वो किसी को 50 रुपीज, 100, 150, 200 रुपीज इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, इट इज द डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करेंसी। तो डिसकंटिन्यूअस रेडिएशन को हम क्या कहते हैं कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ द सर्टेन पैकेट्स आर द बंडल्स ऑफ डेफिनेट यूनिट्स। वो एनर्जी के पैकेट्स या बंडल, वेव पैकेट्स, उसको हम क्वांटा कहते हैं। क्वांटा इज प्लूरल, सिंगुलर इज क्वांटम। यानी एनर्जी इज emitted discontinuously in the form of the wave packets or the bundles of energy which is known as quanta। Now each quantum is associated with a definite amount of energy, उसे हम फोटॉन कहते हैं। अब इसको एक और मैं डायग्राम से कहूंगा, दिस इज द कंटिन्यूस emission of energy in the form of the wave। और अगर मैं इसको यूं ब्रेक करता हूं इन द फॉर्म ऑफ द पैकेट्स ऑफ वेव, तो ये डिसकंटिन्यूस emission जो है वो शो करेगी। तो मैंने ये आपको काफी समझाने की कोशिश की है कि हाउ एनर्जी इज emitted continuously or discontinuously। So the first main point of the Max Planck's quantum theory is that energy emitted by radiation is not in the continuous manner, it is in the discontinuous manner in the form of the wave packets or the bundles of energy। That wave packets or bundle are known as the quanta, singular quantum। Energy of one quantum is known as photon। Now the second postulate. Now amount of energy associated with each quantum of photon is directly proportional to frequency। ये जो एनर्जी एमिट हो रही है डिसकंटिन्यूसली, वो उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करें, E इज इक्वल टू एच न्यू। एच इज द कांस्टेंट नोन एज द प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू
6.625 into 10 raised power minus 34 जूल सेकेंड। ये माइनस 34 ये एक्सपोनेंट में होगा जूल सेकेंड। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। इस इक्वेशन वन को प्लैंक्स इक्वेशन कहा जाता है। Now number 3, the energy emitted absorbed by a body is either equal to one quantum or multiple units of it। इसका मतलब ये है कि energy is emitted is equal to n into h nu। इसका मतलब एनर्जी emitted or absorbed by body will be equal to 1 h nu अगर n की वैल्यू 1 है, 2 h nu अगर n की वैल्यू 2 है, 3 h nu अगर n की वैल्यू 3 है। लेकिन इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी 1.5 h nu, 1.2 या 2.5 h nu और 3.8 h nu ये नहीं हो सकती। Therefore, energy emitted or absorbed by body is quantized, यानी it must be in the definite quantity which will not be in the fraction। इस concept को हम कहते हैं quantization of energy। Energy emitted or absorbed will be in the form of definite quantity or some multiple of it। जी स्टूडेंट्स, ये स्लाइड एक दरमियान मिस होगी। अब इस प्लैंक्स इक्वेशन को हम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन से जो है वो रिलेट कर सकते हैं। अभी आपने प्लैंक्स इक्वेशन क्या पढ़ी है? E इज इक्वल टू एच न्यू। इस न्यू यानी फ्रीक्वेंसी को हम इसकी वेवलेंथ से हम रिलेट कर सकते हैं। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा एंड न्यू इज इक्वल टू C ओवर लैम्डा। तो आप यहाँ पे इस न्यू को C ओवर लैम्डा से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप न्यू की जगह C ओवर लैम्डा पुट करते हैं देन E विल बी इक्वल टू HC ओवर लैम्डा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लीजिए। Now equation number 2 shows that energy and the wavelength are inversely proportional to each other। अगर वेवलेंथ स्मॉलर है, एनर्जी ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पे वायलेट लाइट के जो फोटॉन्स हैं उनकी वेवलेंथ कम होगी, एनर्जी ज्यादा होगी। रेड लाइट के जो फोटॉन्स हैं उनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, एनर्जी कम होगी। अब इसी रिलेशनशिप को हम फर्दर जो है वो मॉडिफाई करते हैं। अभी हमने रिलेशनशिप पढ़ी E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, लेकिन 1 ओवर लैम्डा किसके बराबर है? न्यू बार यानी वेव नंबर के। तो आप 1 ओवर लैम्डा की जगह न्यू बार जो है वो पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। तो अब आपके पास तीन रिलेशनशिप आ गई। E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा एंड E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। ये तीनों रिलेशनशिप अब आपको क्या बताती हैं कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, energy of radiation is inversely proportional to its wavelength, and energy of radiation is directly proportional to its wave number। So this was the Max Planck's quantum theory of the radiation। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल जरा समझ लीजिए। A photon of light with the energy 10 to the power minus 19 joule is emitted by a source of light। Calculate its wavelength, frequency and wave number। Then convert this energy into ergs and then calculate the wavelength into centimeter, frequency in hertz and wave number in centimeter bar 1। फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमने एनर्जी को जूल में कैलकुलेट करना है और वेव नंबर को मीटर बार 1 में। लेकिन जब हम इस एनर्जी को अर्ग्स में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमने वेवलेंथ को मीटर में, जबकि फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में ही होगी, जबकि वेव नंबर मीटर बार 1 में होगा। तो ये देखते हैं कि हम इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सिर्फ जो है वो डाटा है एनर्जी इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। हमने वेवलेंथ भी मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी भी, वेव नंबर भी। एच की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी अप्लाई कीजिए बाय अप्लाइंग द प्लैंक्स इक्वेशन। E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू विल बी इक्वल टू E ओवर एच। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए।
वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइड बाई 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई 1.509 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकंड बार 1 आर हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आप फ्रीक्वेंसी से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं वेवलेंथ C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा और लैम्डा इज इक्वल टू C ओवर न्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करें 1.509 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकंड बार 1 आपके पास वेवलेंथ आ गई 1.98 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। अब आप वेव नंबर कैलकुलेट कीजिए इनवर्स ऑफ लैम्डा से 1 ओवर 1.98 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। इसका जब आप इनवर्स ले लेंगे ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5.03 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर पर 1। अब इस न्यूमेरिकल का बी पार्ट कि आपने इस एनर्जी को अर्ग्स में कन्वर्ट करना है। जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना हो तो इसको 10 टू द पावर 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये अब आपके पास 10 टू द पावर माइनस 19 जूल किसके इक्वल आ गए 10 टू द पावर माइनस 12 अर्ग्स के। H की वैल्यू अब आपके पास आ जाएगी, ये भी आपने 10 टू द पावर 7 से मल्टीप्लाई करके हासिल करनी है 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 को आपने 10 टू द पावर 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 अर्ग्स सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट पहले आपने मीटर पर सेकेंड में लिए तो अब ये क्या आ जाएगी 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपने वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वेव नंबर मालूम करनी है। सबसे पहले आप प्लैंक्स इक्वेशन अप्लाई कीजिए न्यू इज इक्वल टू ई ओवर एच। ये न्यू की एनर्जी को आप एच से प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड करें आपके पास फ्रीक्वेंसी उतनी आ जाएगी 1.509 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज और सेकंड बार 1। अब आपने मालूम करना है wavelength. Wavelength will be equal to C over nu. Yani C is equal to nu lambda. So lambda will be C over nu. It will be equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by frequency. ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.98 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सेंटीमीटर। और अब आप इसका इनवर्स ले लीजिए तो ये अब आप इसका इनवर्स जो है जब लेंगे तो ये क्या आ जाएगा इट विल बी 5.03 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेंटीमीटर बार 1। ये आप इसकी का वेव नंबर आ गया। तो ये बच्चों ये न्यूमेरिकल्स हैं, इस तरह के न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये रिव्यू क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। इनको आप पहले जो है वो अच्छी तरह इस लेक्चर को स्टडी कीजिएगा और उसके बाद बुक से स्टडी करें इन रिव्यू क्वेश्चन को। इसके बाद जो है वो सॉल्व कीजिएगा रिव्यू क्वेश्चंस। Derive the relationship for the energy release when an electron shift from the high energy orbit N2 to low energy orbit N1. Derive the relationship for the frequency and wave number of emitted radiation as a result of this transition. Calculate energy release when an electron shift from third to second orbit in the hydrogen atom. ये न्यूमेरिकल है और इसके अलावा बाकी न्यूमेरिकल भी इसी तरह से हैं। और इसके बाद जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 तक ये मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि राइट डाउन द मेन पॉइंट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ। और उसके बाद ये अभी जो न्यूमेरिकल मैंने आपको समझाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आज के दोनों जो मैंने आपको पढ़ाए हैं इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। Thank you very much, my dear students.